मोटरसाइकिल ते जा रहे हो, ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਡਸਟ ਪਾਰਟੀਕਲ ਜਾਂ ਕੋਈ ਕਚਰਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਤੁਸੀਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਨੂੰ ਬ੍ਰੇਕ ਵੀ ਲਾ ਦੋਗੇ, ਆਪਣਾ ਰੁਮਾਲ ਕੱਢ ਕੇ ਅੱਖ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਲੋਗੇ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਨੂੰ ਨਿਊਰੋ ਟਰਾਂਸਮਿਟਰ ਸਿਸਟਮ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਇਨਸਾਨ ਡਰੱਗ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਨਿਊਰੋ ਟਰਾਂਸਮਿਟਰ ਸਿਸਟਮ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਡਰੱਗ ਐਡਿਕਟਡ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਡਿੱਗੇ ਪਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਸੁੱਧ ਬੁੱਧ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਿਊਰੋ ਟਰਾਂਸਮਿਟਰ ਸਿਸਟਮ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬ੍ਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥਿੰਕਿੰਗ ਪ੍ਰੋਸੈਸ, ਸੋਚ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ, ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਕੰਟਰੋਲ ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਸਿਸਟਮ ਜੋ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸਪੀਚ ਸੈਂਟਰ ਜੋ ਬੋਲਚਾਲ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਨਸਾਨ ਡਰੱਗ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਬ੍ਰੇਨ ਗੁਲਾਮ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਨਾ ਹੀ ਉਹਦਾ ਥਿੰਕਿੰਗ ਸਰਕਟ, ਨਾ ਰਿਵਾਰਡ ਸਰਕਟ, ਨਾ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਕੰਟਰੋਲ ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਸਿਸਟਮ ਉਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਡਰੱਗ ਐਡਿਕਟਡ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਪਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਸੁੱਧ ਬੁੱਧ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਸਰੀਰ ਤੇ ਬ੍ਰੇਨ ਦੀ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਤੱਥ ਮੈਡੀਕਲ ਸਾਇੰਸ ਨੇ ਸਾਬਤ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਪਰ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 500 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਮੱਤ ਵਿੱਚ ਰਤਨ ਜਵਾਹਰ ਮਾਣਕ, ਸਾਰੇ ਹੀਰੇ ਮੋਤੀ ਤੁਹਾਡੀ ਮੱਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਨਸ਼ਾ ਕਰਦਾ ਕੀ ਹੈ? ਮੱਤ ਨੂੰ ਗੁਲਾਮ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਲੁੱਟਿਆ ਗਿਆ। ਯੂ ਕੈਨੋਟ ਸਰਵਾਈਵ ਇਨ ਦਾ ਸੋਸਾਇਟੀ ਫਾਰ ਅ ਲੌਂਗ ਟਾਈਮ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਜਾਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਨਵਾਈਟ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਬੜੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਨੇ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਕੀ ਬੋਲਾਂਗਾ, ਪਰ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ। ਗਿਆਨੀ ਸਾਹਿਬ ਅਰਦਾਸ, ਗਿਆਨੀ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ਬਦ ਕੀਰਤਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਸ਼ਬਦ ਬੋਲ ਰਹੇ ਸੀ, ਗगन दमामा बाजियो परे निशाने काओ, खेत जो मांडे सूरमा अब जूजन को दो। प्यारे बच्चों, तुसी सारे जानते हो गगन की है, आकाश है। आकाश कित्थे है? ऊपर है। शरीर दा अपर पार्ट ऑफ द बॉडी, शरीर दा अपरला हिस्सा ब्रेन है। ਜਦੋਂ ਬ੍ਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਟਰੂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਸਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸੋਚ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਵਿਦਿਆ ਵਿਚਾਰੀ ਤਾਂ ਪਰਉਪਕਾਰੀ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਸਿੱਖ ਗਏ, ਉਸ ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਭਲਾ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਦੂਸਰੇ ਦਾ ਵੀ ਭਲਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਟਰੂ ਗਿਆਨ ਹੋਏਗਾ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿੱਦਾਂ ਲੜਨਾ ਹੈ, ਮਨ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਨਿਜਾਕਤ ਦਿਵਾਉਣੀ ਹੈ। ਸਾਰੀਆਂ ਬਰੀਆਂ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਥਾਟ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਨੂੰ, ਉਹ ਵਿਕਟਮ ਆਫ ਗੋਡ, ਉਹ ਟਰੂ ਨੌਲੇਜ, ਉਹ ਬ੍ਰੇਨ ਨਸ਼ੇ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈਗਾ, ਤਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਸਹੀ ਇਨਸਾਨ ਬਣ ਸਕੀਏ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਬਹੁਤ ਹੋ, ਸੁਣਦੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੋ, ਪਰ ਅਮਲ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਅਰਦਾਸ ਵੀ ਆਪਾਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪੜ੍ਹਦੇ ਵੀ ਹਾਂ, ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਮਨ ਨੀਵਾਂ ਮਤ ਉੱਚੀ, ਮਤ ਪਤ ਕਾ ਰਾਖਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਮਰਤਾ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਡਰੱਗ ਮਨ ਨੂੰ ਹਾਰਡ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਨਿਮਰਤਾ ਮਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਮਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਉੱਚੀ ਰੱਖਣੀ ਹੈ, ਫੇਰ ਹੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਲਾਜ ਰੱਖੇਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਤ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਬ੍ਰੇਨ ਨੂੰ ਡਰੱਗ ਤੋਂ ਬਣਾ ਕੇ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ, ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਪੋਰਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ। ਮੈਨੂੰ ਕਿਉਂਕਿ ਸਪੋਰਟਸ ਬਹੁਤ ਔਖੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਗਰਮੀ, ਸਰਦੀ, ਧੁੱਪ, ਹਨੇਰੀ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਕਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ, ਗਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਏਸੀ ਲਾ ਕੇ, ਸਰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਲੋਰ ਲਾ ਕੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਵਰਕ ਹਾਰਡ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਸਪੋਰਟਸ ਵਾਲੇ ਨੇ ਉਹ ਮਨ ਦੇ ਬੜੇ ਸਟਰੋਂਗ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਡਰੱਗ ਦੇ ਹੋਰ ਕੀ ਨੁਕਸਾਨ ਨੇ? ਸਮਾਜਿਕ ਨੁਕਸਾਨ, ਸੋਸ਼ਲ ਲਾਸ। ਜੋ ਡਰੱਗ ਐਡਿਕਟਡ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਡਰੱਗ ਬੇਬੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀ ਪਛਾਣ ਹੈ? ਅਪਰ ਲਿਪਸ ਪਤਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਿਰ ਛੋਟਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਬੋਲਣ ਦੇਰ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪੱਕੇ ਤੌਰ ਤੇ ਨੁਕਸ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਅੱਖਾਂ ਘੱਟ ਖੁੱਲ੍ਹਦੀਆਂ, ਉੱਚੀ ਸੁਣਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਹੋਰ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਬੱਚਾ ਮੰਗਿਆ ਸੀ ਤੰਦਰੁਸਤ, ਡਿਲੀਵਰ ਕੀਤਾ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਰੋਗੀ। ਆਪੇ ਰੋਗ ਲਾਉਣੇ, ਆਪੇ ਦੇਣੀਆਂ ਦਵਾਵਾਂ, ਇਲਾਜ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕਰਾਏ, ਦਵਾਵਾਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਮੰਗੀਆਂ, ਪਰ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ, ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਲਈ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਬ੍ਰਾਂਡ ਐਂਬੈਸਡਰ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤਾਂ ਜੋ ਬੱਚੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਸਿੱਖਣ ਕਿ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨੇ ਨੇ। ਹੋਰ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀ ਹੈ? ਪੈਸੇ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ, ਇਲਾਜ ਬੜੇ ਮਹਿੰਗੇ ਨੇ। ਆਰਥਿਕ ਨੁਕਸਾਨ, ਹੈਲਥ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ, ਕਰੈਕਟਰ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਨਾਨ ਮੈਡੀਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਪੋਇਮ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਮੈਨੂੰ ਲਾਈਨਾਂ ਯਾਦ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜੇਕਰ ਪੈਸੇ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਜੇ, ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਕਿ ਕੁਝ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ।
जेकर सेहत का नुकसान हो गया समझ लेना कुछ ना कुछ नुकसान होया, जेकर करैक्टर का नुकसान हो गया समझ लेना कि बेड़ा गर्क हो गया। नशा करदा की है, ये तिन्ने चीज़ों को डिस्ट्रॉय कर दिंदा एंड देयरफॉर यू कैन नॉट सर्वाइव इन द सोसाइटी फॉर ए लॉन्ग टाइम। इन्हां तिन्नां चों बचना हैगा तुसीं। होर की नुकसान है? धार्मिक जिंदगी का नुकसान है। मैं गुरु ग्रंथ साहब नूं कई बार पढ़िया है, विच लिखिया होया है भांग मछली सुरापान जो जो प्राणी खाए, तीर्थ वर्त नेम किए सभी रसा तल जाए। जो इंसान नशे का इस्तेमाल करता है वो किन्ने ही तीर्थ वर्त कांड कर्म कांड कर ले, ਉਹਦਾ कोई फायदा नहीं। पान सपारी खातियां मुख बीड़ियां लाइयां, हर हर कदे न चेते जां पकड़ चलाइयां। जो नशे के जम ने वो तुहानूं फड़ के लै जाणगे, छेती ये तो खैड़ा छड़ा लेना चाहिए है। मैं एक बार एक हॉस्पिटल दे विच एक ड्रग एडिक्टर ने एक्सीडेंट करके कई बंदे मार दिते ते मैं उसदा बयान लिखन गया ते मैं उन्होंने पूछा कि तुहाडा नाम की है? वो कहंदा लेट महिंदर सिंह। मैं कहा यार है तो तू जिउंदा, लेट क्यों लिखी जाना? वो कहंदा हुण मैं नशा कर लग्या, मरता जाना ही है। प्यारे बच्चों, जो इंसान नशे का इस्तेमाल कर रहे हैं वो छेती निजागत पा लैनी चाहिए है, नहीं तो जिउंदे जी अपने नाम के अगे लेट लिखा लेना चाहिए है। नशा करन दे नाल उम्र घटदी है। जो इंसान सिगरेट एक पींदा दिन दे विच 10 मिनट लाइफ वो खत्म हो जाती है। जो 10 पींदा है या एक पैकेट पींदा 1/7 हिस्सा लाइफ का खराब कर लेंदा है, क्योंकि सिगरेट दे विच बड़े खतरनाक रसायन तत्त ने। निकोटीन, आर्सनिक जो कीड़े मार दवाइयां, चूहे मार दवाइयां दे विच इस्तेमाल हुंदा है। कार्बन मोनोऑक्साइड पेपर जल नाल पैदा हुंदी है। फॉर्माल्डिहाइड जो गलियां सड़ियां डैड बॉडियां दे लगाई जाती है तां जो गल सड़ ना जान। एसीटोन जो नेल पॉलिश रिमूवल है जिहदे नाल नेल पॉलिश उतरदी है, वो भी इस्तेमाल किया जाता है क्योंकि उसकी समैल बड़ी प्यारी है। वो तंबाकू की बैड समैल को काउंटर कर दिंदा है। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ बेंजीन है जो रबड़ इंडस्ट्री ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ है। ये सारियां चीज़ां असीं खा रहे हैं। जे निकोटीन जो 12 mg एक सिगरेट चो पैदा होंदी है, जेकर 2 mg एक चूहे नूं पिला दित्ती जाए वो मर जाएगा। जे 9 mg 2 बिल्लियां या एक कुत्ते नूं पिला दी वो भी मर जाएगा। जे 60 mg इंसान नूं इकट्ठी पिला दी वो भी मर जाएगा। वो बेचारे नहीं पढ़ सकते, सिगरेट के उपर लिखा होया है इंजूरियस टू हैल्थ, सेहत लई हानिकारक है। वो चूहे बिल्लियां नहीं पढ़ सकते। असी इंसान है, असी उत्तम श्रेणी का अपने आप को प्राणी समझते हैं। जे पढ़िया लिखिया होने के बावजूद असी वो इस्तेमाल कर रहे हैं तो सानू इंसान की श्रेणी के विच नहीं अपने आप को रखना चाहिए। नुकसान बहुत ने ये, मैं डिटेल च नहीं जावांगा। इलाज भी बड़े ने, कोल्ड टर्की मैथड है, होर मैथड है, डॉक्टर साहब पहला दस चुके ने। सिम्पटम भी थोनों दस गए ने तो थोनों थोड़ा जिहा मोटीवेट करने वास्ते मैं 3-4 चीज़ां जरूर दसांगा। मैं एक ड्रग एडिक्टर की प्रॉपर्टी अटैच कराउण वास्ते राजपुरा तो दिल्ली जा रहा सी। सड़क का नाम NH1 है। पहले शेरशाह सूरी मार्ग कहा जाता सी। वो 5 साल दे विच राजे ने सड़क बनाई दिल्ली टू लाहौर, लाहौर अगे जाके कलकत्ते तक गई। वो राजे ने 5 साल लई काम किया। ये 5 साल दे विच किदां काम किया जा सकता है जदों कि गुलामां तो काम लिया जाता सी। उन्हें मुगल सरायां बनाईयां, लोगों वास्ते दरख्त लाए, पानी ले खूह पटाए गए। इंटरनेट का जमाना हैगा। प्यारे बच्चों, चंगा देखिया करो, चंगा सुनिया करो, चंगा खाया करो, चंगा पहनिया करो, थोड़ा थॉट प्रोसैस आप ही सही हो जाएगा। यू कैन ओनली गेट द योर सक्सैस। इस करके तुम चंगा देखना सुनना कर लो। इंटरनेट का जमाना हैगा। नैट ते जाके देखिया शेरशाह सूरी बारे विच लिखिया होया सी The greatness of a person lies behind keeping himself busy in good work, even loss of a single second। जो इंसान अपनी जिंदगी के एक सैकंड का ख्याल रखता है चंगा काम करने लई, ਉਹਦੇ ਲਈ 1 साल 5 साल बहुत बड़ी गल है। प्यारे बच्चों, मैं थोनों सैकंड की खेड विच नहीं पाउणा। तुसीं 1 दिन का ख्याल रख लिया करो, 1 दिन का शेड्यूल बना लिया करो, आप ही थोड़ी मंजिल है जो तुसीं प्राप्त कर जाओगे। फिर पेपरां वाले दिन कोई चेहरे पीड़े नहीं पैने। यू कैन गैट विद वेरी ईज इन योर लाइफ। अगे प्यारे बच्चों, फिर मैं देखा कि शेरशाह सूरी ने की लिखा होया, उसकी महानता की है। गुड वर्क, सोशल वर्क, नोबल काज, चंगा काम। मैं नशा नहीं करता, ये गुड वर्क है। सोशल वर्क, जे कोई नशा करता है उन्होंने मैं समझावांगा, मुख्य धारा में लियावांगा, उसका इलाज करावांगा। सोशल वर्क। नोबल काज की है, जे कोई नशा बेचता उसकी सूचना दे के सेंट्रल जेल भेजन का इंतजाम करिए। ये तिन्ने काम कर दिए, आप ही नशा मुक्त समाज की सिरजना हो जानी है। तो शुरुआत भी अपने आप तो करिए बिना किसी सैकंड खोए तो। इंटरनेट का जमाना तो मेरे दिमाग के आ गया भी शेरशाह सूरी ने बड़े काम किए ने
ਹਿਟਲਰ ਦੀ ਯਾਦ ਆ ਗਈ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰੋੜ ਦੇ ਕਰੀਬ ਬੰਦੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤੇ ਉਹਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦਾ ਨੈਗੇਟਿਵ ਥਾਟ ਸੀ, आई हैव ओनली वन अल्टरनेटिव, विक्ट्री और डेथ, जित या मौत। हार नेड़े आके सुसाइड कर गया। ये नैगेटिव विचारधारा है। मैं थोनू कह रहा सी पॉजिटिव माइंड, मैं हिटलर नू सोच नू चेंज किया। देयर इज ओनली वन ऑप्शन फॉर ड्रग एडिक्टेड पर्सन, दैट इज फिजिकल डेथ और सोशल डेथ। जो इंसान ड्रग का इस्तेमाल करता है वो समाजिक मौत ते शरीरक मौत हो जाती है। नशे नाल सारियां प्राप्तियां खत्म हो जांदियां। प्यारे बच्चों, पढ़ लिख के तुसीं अफसर भी बन जाना है, वो शौर्त मेनटेन रखनी है, सारियां प्राप्तियां का खात्मा हो जाता है। क्योंकि मैं एक 1990 की गल है, एक अफसर बहुत वधिया सी, पढ़ लिख के बहुत वधिया अफसर बन गया, इंटैलीजेंट बहुत सी, बाद चों नशे का आदि हो गया। आवाज़ बड़ी प्यारी सी, गज़ल बड़ी वधिया गाउंदे सी। उन्होंने मैनू शाम को इनवाइट कर लिया सैक्टर 7 चंडीगढ़ दे विच। वो 10-12 पैग शराब दे पी गई, चेन समोकर सी, सिगरेट पी रहा सी। मैं सोचा कि रघवीर बड़ी गलत जगह फस गए हो। वट आई ऑलवेज ट्राई टू कन्वर्ट नैगेटिव इंटू पॉजिटिव। वो नैगेटिव विचारधारा नूं मैं पॉजिटिव दे विच बदलना चाहता सी। वो शराब पींदे रहे। जब मैं उठ के आउण लग्या तो मैनू कहण लगे कोई होर गल सुना दिओ। जो गल सुनाई सी मैं तुहानूं कह दिंदा। मैंने कहा था कि नशा छोड़ दो, पर वो शरीर छोड़कर चला गया। वो रोन लग पे, कहते मेरी वाइफ ते बच्चे छड्ड के मैनू चले गए ने, इस करके कला करके पीना है। मैं नहीं सर, नशे के कारण ही तुसीं कल्ले रह गए हो। कुछ दिन बाद जमीन ते डिग पे, हैड इंजरी हो गई, तो मैनू भी जाण दा मौका मिलिया। कहते इत्थे जमीन ते डिग पे ने। इंसान दी फितरत है, वो देखदा कि इंसान कित्थे डिग्या। वट वी डोंट सी फ्रॉम वेयर परसन फॉलन, ये असी नहीं सोचते कि वह कितों डिग्या। आओ प्यारे बच्चे ध्यान नाल देखिए। न्यूटन के सिर के उपर सेब बजया, जे मेरे वर्गा होंदा चुक के खा जाना सी। उन्हें सोचा कि थले क्यों डिग्या, उपर क्यों नहीं गया। लॉ ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स की खोज कढ़ी। सारी स्पेस इंजीनियरिंग, सारी सिविल इंजीनियरिंग बदल के रख दी। आओ प्यारे बच्चों ध्यान नाल देखिए कि क्यों डिग्या। जदों नशा करन लग पिया सी, पहले वो टैंपरेरी तौर पर डिगदा सी, बाद चो परमानेंट तौर पर डिग पिया। पहले वो सोशल मौत होंदी रही, बाद चो फिजिकल डेथ हो गई। प्यारे बच्चों, एक जन्म थोड़े माता पिता की देन है, दूजा तुसी खुद सवारना। बाय सेइंग परमानेंटली गुड बाय टू ड्रग टू अवॉइड सोशल डेथ। प्यारे बच्चों, मैं गल कर रहा सी इमोशनल कंट्रोल रेगुलेटर सिस्टम दी। संवेदनशीलता खत्म हो जाता है। ड्रग एडिक्टेड बच्चे की सिर्फ एक ही सोच होंदी है, नशे का प्रबंध करना या इस्तेमाल करना। किसी की खुशी गमी नाल नहीं कोई फर्क पैंदा। गल 95 की करदा हैगा। एक ड्रग एडिक्टेड बच्चे की माता की डैथ हो गई। ड्रग एडिक्टेड बच्चा माता के शरीर वाल आके देखण लग पिया अते गर्दन दे विच गहणियां दी तलाश करन लग पिया। फिर उन्हें माता के हत्थां वाल देखिया, गल विच मंगल सूत्र नहीं सी, हत्थ विच एक टुकड़ा फड़िया होया सी कागज़ दा। मंगल सूत्र भी फड़िया होया सी, मंगल सूत्र भी फड़िया होया सी। प्यारे बच्चों, माता ने अपने दिल दे अरमान कागज़ दे विच लिखे हुए सन। प्यारे सपुत्र जी, कल तुसी नशे दे लई मेरा मंगल सूत्र खोण की कोशिश की अते मेरे थप्पड़ भी मारिया, क्योंकि थोनू पता नहीं कि मैं मंगल सूत्र नहीं दे सकती। तुसी पहला ही कीमती जेवरात सब कुछ बेच दिता है। अज इस कारण मैं सभी इच्छा अनुसार शरीर त्याग रही हैं, मंगल सूत्र भी पेट कर रही हैं। प्यारे बच्चों, बेच के इलाज करवा लेना, पर नशा ना खरीदना, क्योंकि वह इमोशनल कंट्रोल रेगुलेटर सिस्टम खत्म हो चुकिया सी। वो बिल्कुल नहीं रोया। नशा नाल ब्रेन सी स्लेव कर दिता सी। माता का मृतक शरीर छड्ड के चला गया नशा लैण वास्ते। पहले शौक था, पेशा हुआ ड्रग खरीदना। खरीद लेता हूँ चाहे मिले कितने ही दाम पर। ये तो घटिया ते महंगा सौदा की हो सकता है। वो बायोलॉजिकल पार्ट पेरेंट्स का माता जी की